جنوبی کشمیر کی معروف زیارت گاہ خانقاہ فیض پناہ ترال کے سابق امام مولوی غلام رسول شاہ انتقال کر گئے۔ مرحوم کے انتقال پر ترال علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مولوی غلام رسول شاہ المعروف لسا صاحب طویل علالت کے بعد گزشتہ رات انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ خانقاہ فیض پناہ ترال میں ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انتہائی شریف النفس، محنتی اور رب ذوالجلال کا ڈرنے والا تھا، متقی تھا۔ اس نے اپنی زندگی، ساری زندگی اسلامی خدمات میں، امامت میں، درس و تدریس میں، وہ جامع العلوم حمدانیہ سکول ترال سے استاد بھی تھے، اور تمام زندگی اس نے صرف قرآن و حدیث کی تبلیغ میں کر دی، اور اس کی پیروی میں اس نے اپنا زندگی سارا گزارا۔ اور آج وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بڑے دن میں وہ یوم عاشورہ کے دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آج انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت کی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ چنارکوٹ کے جوان 10ویں محرم کے جلوس کے دوران عزاداروں کی خدمت پر مامور ہیں۔ چنارکوٹ کے جوان علی آباد، شالیمار سری نگر میں میڈیکل ایڈ پوسٹ اور ریفریشمنٹ پوائنٹ قائم کر کے زخمیوں اور بیماروں کی مدد کر رہے ہیں۔ آج یوم عاشورہ ہے۔ دنیا بھر میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین کون تھے؟ ان کا مشن اور مقصد کیا تھا؟ اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بنگلورو میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ملک کے IT شہر بنگلورو کے بریگیڈ روڈ جنکشن میں لوگوں میں پانی کی بوتلیں تقسیم کرتے ہوئے ایک QR کوڈ دیا جا رہا ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف موجود ہے۔ ہو از حسین تنظیم کی یہ خوبصورت پہل ہر ایک کو متاثر کر رہی ہے۔ 1400 سال قبل کربلا کی سرزمین پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین نے اسلام کے اصولوں، انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ اس وقت یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کیا اور قلیل تعداد میں افراد کے ساتھ کربلا کی جنگ لڑی۔ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو اسی واقعے کی یاد میں پوری دنیا کو حق اور انصاف، انسانیت و محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ تنظیم کربلا اور حضرت امام حسین کی شخصیت کا تعارف نہ صرف مسلمان بلکہ تمام لوگوں میں عام کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ تنظیم کے نمائندے ڈاکٹر زکریا عباس نے کہا کہ مہاتما گاندھی، نیلسن منڈیلا اور دنیا کی کئی اہم شخصیات نے حضرت امام حسین کی شہادت سے تحریک پائی۔ اس تنظیم نے نہ صرف بنگلورو بلکہ ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کی بیداری مہم چلائی اور یہ پیغام دیا کہ بس ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا ہے۔ This is the death day of our Imam Hussain, who is the grandson of Prophet Muhammad. So उनकी मेमोरी में we are distributing free bottles. Every year होता है ये। तो उनकी जो डेथ हुई थी उसकी मेमोरी में उनके जो he died thirsty. So in his memory we are just remembering what he taught us and जो सिखाते हैं वो दिमाग में रख के बस ये वाटर बॉटल्स सबको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेल हम ये पानी फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे मोमिनीन को, यानी कि सब हिंदू, मुसलमान, सिख जो भी है यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि ये मालूम होने के लिए कि इमाम हुसैन जो प्रॉफिट के मोहम्मद के ग्रैंडसन हैं, जो पानी बिना पानी 3 दिन तक उनको रख के उसके बाद शहीद किया है, इसीलिए उनका रिमेम्बरेंस से हम लोग ये पानी यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। We as part of Who is Hussain organization are distributing free water bottles in the remembrance of Imam Hussain, the grandson of Prophet Muhammad. He taught us to be kind and to show humanity, and we are doing what he has taught us. So as a small gesture we are distributing to the people who are walking around. So yeah, thank you. GOC 15 کوڑ لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی نے LOC ٹیٹوال میں شاردا مندر کا دورہ کیا۔ GOC نے اپنی اہلیہ کے ساتھ شاردا مندر اور گردوارے کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ GOC کپواڑہ گریش کالیا اور ان کی اہلیہ بھی تھی۔ ان کا استقبال شاردا ٹیمپل کمیٹی کے ارکان نے کیا۔
आपको बता दें कि वहां मौजूद जनूबी हिंदुस्तान के यात्रियों ने भी उनका इस्तकबाल किया। चेयरमैन सेवा शारदा कमेटी रविंद्र पंडिता ने फौजी अफसरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने टेटवाल में हाल ही में इफ्तिताह किए गए मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर जीओसी ने शारदा कमेटी के किरदार की तारीफ की। मेहमान जनरल को सेव शारदा कमेटी ने शारदा शॉल और यादगारी तोहफा पेश किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने 3 दहाई बाद श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस की इजाजत देने पर एलजी इंतजामिया की सताइश की। उन्होंने 10 मुहर्रम को भी तमाम इलाकों में मुहर्रम के जुलूस पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। आगा सईद अब्बास रिजवी ने उड़ी के इलाके चोलन में हुसैनी मजलिस में शिरकत की। अब्बास रिजवी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की तालीमात भाईचारे और हक़ व इंसाफ के लिए कुर्बानी का दर्स देती है और इंसानियत को पुरअमन और खुशहाली दुनिया के लिए इन तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी न सिर्फ शिया बरादरी सोगवार है बल्कि दुनिया का हर मजहब और फ़िरका शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी से मुतासिर है। जिस जुलूस की इजाजत नहीं मिली, हालांकि वो 34 साल में वो हमारे अपने यहाँ हुक्मरान रहे हैं, अगर वो भी चाहते तो वो भी इस जुलूस को निकालने की इजाजत देते। लेकिन मैं आज इस बाबरकत मजलिस में जितने भी इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका वो ममनून व मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने कल एक ऐसी तारीख रकम की है। बडगाम में आशुरा का जुलूस बरामद हुआ। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने जुलूस अज़ा में शिरकत की। वादी भर से आए अज़ादारों ने नुहाखानी और सीनाकोबी करके इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया। पेश बडगाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। आज आशूरा है और आज ही के दिन करबला के मैदान में नवासे सरवरे कायनात हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए वादी भर में आशूरा के मातमी जुलूस बरामद हुए। जिला बडगाम में सबसे बड़ा मातमी जुलूस अंजुमन शरई शियान की जेर सदारत बरामद हुआ। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ऐसी मिसाल कायम की जिसने रहती दुनिया तक हक़ व बातिल के दरमियान वाज़े हद कायम कर दी। आज वाक़े करबला को 1400 से ज़ायद बरस गुजर जाने के बाद भी ज़माना इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को याद करता है। आज़ादारों का कहना है कि हुसैन हमें सिखाते हैं कि हक़ का साथ देने से अल्लाह का साथ हासिल होगा। आज जो ये आप आज़ादार देख रहे हैं, ये अपना न सिर्फ खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं बल्कि उस याद को ताज़ा करते हैं, उनकी जो उन पर जो मसाइब डाले गए उनको याद करते हैं और इमाम ज़माना अल्लाह ताला को अपना जो गम है वो पेश करते हैं, अपनी ताज़ियत पेश करते हैं। लोग उनको याद करेंगे ही, क्योंकि ये हम पर फर्ज बनता है कि अगर इस वक्त फख्र से अज़ानें होती हैं मसाजिद में तो ये सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के देन, शहादत की देन है। हमारे लिए आशूरा हक और बातिल की लड़ाई है और जहाँ जहाँ हक और बातिल का मार्का हो हम इंशाल्लाह उस वक्त हक का साथ दें। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेहतरीन खराज अक़ीदत होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त जो उस तागूत के खिलाफ जो जंग नहीं की, हम कहेंगे वो कोई सामान उसके पास ये फौज ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ खानदान और जो लोग थे और एक तरफ से बिल्कुल फुल बातिल खड़ा था, लेकिन उसने फौज के तेज न देखते हुए हक का साथ देते हुए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने तमाम 72 जो उसके जानवर थे शहीद होकर करबला में ये दर्ज दिया कि मुसलमान और आलम इंसानियत में हमेशा हक और बातिल की जब जहाँ जहाँ जो मार्का होता रहेगा वो हक का साथ देते रहेंगे। आपको बता दें कि आशूरा के रोज करबला में अहले बैत पर यजीदी लश्कर ने जुल्म ढाए। पहले 7वीं मुहर्रम से पानी बंद किया गया और फिर 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके यारो अंसार को प्यासा शहीद कर दिया गया। करबला का जब भी जिक्र होता है तो हक और बातिल का दर्स मिलता है, क्योंकि करबला में दोनों थे, एक हक पर था और दूसरा बातिल।
यजीद बातिल के साथ था और हुसैन हक का साथ दे रहे थे। हक का भी साथ इमाम हुसैन ने कुछ इस तरह से निभाया कि उन्होंने अपना सर तो दिया लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इरशाद फरमाया अपने हदीस में, हुसैन का आशिक मोमिन के दिलों में ऐसा हरारत पैदा कर देगा जो पूरे दुनिया को उस नूर से घेरेगा। जो ये अज़ा है ये क़याम का इब्तिदा है। अज़ा सिर्फ शोर गोगा रोने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि उस मकसद के नज़दीक तक जाया जाए जो कुरानी निज़ाम का क़याम है, जो अल्लाह ताला का मंशा है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा के पास जिस चीज़ का जिसने ज़मीन बनाई, जिसने लोग बनाए, जिसने मखलूक़ात बनाई, उसी को इन पर हुकूमत का हक है। वाज़ेह रहे कि 61 हिजरी में करबला के मैदान में जो आले नबी पर जुल्म हुआ वो रहती दुनिया तक कायम है। मैदान करबला में हुसैन इब्न अली और उनके 72 शुहदा को प्यासा शहीद किया गया। करबला के मैदान में हुसैन ने अपने यारो अंसार दीन इस्लाम के नाम पर कुर्बान किए, यहाँ तक कि अपना 6 माह का फर्जंद हजरत अली असगर को भी दीन मोहम्मद पर कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान में हुसैन के सामने 2 रास्ते थे, या तो यजीद की बैत करना या फिर दीन हक पर रहना। हुसैन ने दीन हक का साथ देते हुए अपना सर दिया और रहती दुनिया तक दीन इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। आज 1400 से ज्यादा बरस गुजर जाने के बाद भी हुसैन इब्न अली जिंदा हैं और आज भी उनके पैगामात और उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है। आज का दिन हमें उस मार्के की याद दिलाता है जिसमें क़यामत की सुबह तक इंसानियत और हक के लिए जान फिशारी कुर्बानी को जमा रखा है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि फासिक, मुनाफिक, हुक्मरान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर इंसान शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा हो, इंसानी तालीमात पर अमल पैरा हो, तो फासिक उसे कतन अपने इंसानी मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं कर सकता है। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, बस एक पल की थी हुकूमत यजीद, सदियां हुसैन की, ज़माना हुसैन का। आज आशुरा है। आज ही के दिन नवासे सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन ने अपने रुफका के साथ दीन इस्लाम के तई मैदान करबला में कुर्बानी दी और रहती दुनिया तक ये मिसाल कायम कर दी कि इंसान के पास 2 रास्ते हैं, एक हक है और बातिल है, और इमाम हुसैन ने हक का साथ दिया और रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाया कि हक का साथ देते हुए एक इंसान कभी ना कतराए। जैसे कि इमाम हुसैन ने हक का साथ देते हुए अपना सर दिया मगर बातिल के सामने वो झुके नहीं। आज इतने 100 बरस गुजर जाने के बाद भी जमाना इमाम हुसैन को याद कर रहा है। ये जुलूस, ये अज़ा उसी याद को ताज़ा करती है और इनका वाहिद मकसद है कि रहती दुनिया तक पैगाम हुसैनी पहुंचाए जाए और हर किसी को यह पता चले कि वाकई करबला में हुआ क्या है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।